Hello guys, I am Hitesh Tripathi and in this video we are going to discuss editorial video. For this question, maximum candy is allocated to K children from weekly code contest to 287 of lead code. Okay, so this is a second medium question in the contest which has happened today's evening. So before starting this video and discussing the editorial and code for the question, let me tell you about Newton School Pay After Placement program. तो बेसिकली इस प्रोग्राम में होता क्या है, they will train you, they will make you a full stack developer, and not only this, after that they will also get you placed in these different companies. Okay, और मोस्ट अमेजिंग थिंग क्या है, एज इसका नाम बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, दैट पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम। तो तुम्हें अपने प्लेसमेंट से पहले एक भी रुपये पे करने की ज़रूरत नहीं है until and unless you get placed in any of the company. ओके, और मिनिमम CTC जो ये प्रोवाइड करवाते हैं इस ऑफ 5 लाख। ओके, अगर तुम्हें इस प्रोग्राम के बारे में और जानना है, you can just go to the link in description, okay, which is given in description, or you can contact in the contact number also, or you can just come to their website and apply for this course. You will get a follow back from their side. In the end, before starting, if you haven't subscribed this YouTube channel, just go and subscribe this and like this video and share this video to your friends who is still like जिनको अभी भी दिक्कत होती है बाइनरी सर्च की प्रॉब्लम करने में। ठीक है, तो ये एक बाइनरी सर्च की अच्छी प्रॉब्लम है और बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जो सबको मतलब 1 मिनट में देख के समझ में आ जाना चाहिए दैट दिस इज क्वेश्चन इज फ्रॉम बाइनरी सर्च। So let's discuss this. You are given zero index integer array candies. Each element in the array denotes a pile of candies of size candies I. You can divide each pile into any number of subpiles, but you cannot merge two piles together. So this statement is a like statement to remember. You can divide a pile into subpiles, but you cannot merge them together to make two piles. Okay, you are also given an integer k. You should allocate piles of candies to k children such that each children gets the same number of candies. Each children can take at most one pile of candies, and some pile of candies may go unused. So this is also an important statement that some piles of candies may go unused. Okay, now return the maximum number of candies each children can get. Fine. So now I will explain some test cases. Suppose हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कैंडीज इन 3 पाइल्स हैं, 5, 8 एंड 6, एंड टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस मेरे पास कितने हैं, 3। इन 3 चिल्ड्रंस को मुझे कैंडीज देनी, तो आंसर कितना है, 5, बिकॉज इस पाइल से मैं सारी की सारी कैंडी इसको दे सकता हूँ। इस पाइल से मैं 5 कैंडीज निकाल के इस पाइल के 2 पाइल्स बनाऊंगा, 1 of 3 and 1 of 5, and the 5th one, the pile which is having 5 candies, I'll give it to second children, and I'll again make 2 piles from this pile, and of 1 candy and 5 candies, and I'll give the pile with 5 candies to third children. Okay, that's why the answer is 5. Now if you see the constraints of the problem, candies dot length, or you can say total number of piles we are having 10 raised 5, or you can say value of n or array length. Then candies in a single pile can be up to 10 raised 7, and total number of children can be up to 10 raised 12. Okay, so this is fine. तो यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं तुम्हें लॉन्ग यूज़ करना है क्वेश्चन, ठीक है, और यू हैव टू गो फॉर सम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ओ ऑफ n, या फिर o ऑफ n log n, या फिर o ऑफ n log k. ओके फाइन, n स्क्वायर तुम नहीं जा सकते, n क्रॉस k तुम नहीं जा सकते क्योंकि कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है। अगर तुम क्वेश्चन में ये पहले से डिसाइड कर लेते हो दैट यू हैव टू गो फॉर सम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n या n log n या n log k, तो थोड़ा सा तुम्हें इंट्यूशन मिल जाता है कि हाँ मुझे जब तुम अपना सॉल्यूशन बिल्ड कर रहे होगे उस समय पे तुम्हें मतलब कोई भी गलत अप्रोच की तरफ तुम नहीं जाओगे। ठीक है, तुम कोई भी गलत अप्रोच की तरफ सोचना शुरू करोगे तुम वहीं पे अपना सॉल्यूशन डिस्कार्ड कर सकते हो, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है ये मेरा जो एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी है क्वेश्चन की उससे ज़्यादा हो जाएगा। फाइन, ओके, तो अब मेरे पास है क्या क्वेश्चन में, सपोज मेरे पास एक एरे है, लेट्स से आई हैव गिवन सम एग्जांपल 5, 4, 5, 7, और टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस k इज इक्वल्स टू 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं बोलूँ तो इसका आंसर है
3। हाउ फ्रॉम दिस पाइल मैं कितने चिल्ड्रंस को 3 की कैंडीज दे सकता हूँ? कैन सिंपली फाइंड इट आउट। 4/3 इक्वल्स टू 1। इस पाइल से मैं सिर्फ एक चिल्ड्रन को 3 की कैंडी दे सकता हूँ। ठीक है, अब इस पाइल से देखते हैं। 5/3 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो इस पाइल से भी मैं सिर्फ एक चिल्ड्रन को 3 कैंडीज का पाइल दे सकता हूँ। 7/3 so this pile will fulfill need of 2 children. Okay, in total 1 1 2 I can give pile with 3 candies to total number of children 4. Okay, that's why answer is 3. now अब मैं ये 3 पे तो डायरेक्ट कंक्लूजन पे नहीं आ सकता या आंसर तो डायरेक्ट बता नहीं सकता। मैं क्या करूँगा, पहले ब्रूटली थिंक आउट करने की कोशिश करता हूँ इनके सॉल्यूशन को। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं अपने आंसर को बिल्ड करता हूँ मिनिमम वैल्यू से, क्योंकि मुझे मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0। तो 0 इज ऑलवेज अ पॉसिबल आंसर, क्योंकि मैं 0 कैंडी सारे चिल्ड्रंस को दे सकता हूँ। 1 की बात करते हैं, क्या मैं सारे चिल्ड्रंस को 1 कैंडी दे सकता हूँ? तो चेक करते हैं ये चीज़। ठीक है, कोई भी एरे गिवन हो, ये तो एक एग्जांपल ले लिया मैंने 4 5 7 का। मैं कोई भी एरे गिवन है तो मैं ऐसे ही चेक करोगे, है ना। तुम इस फाइल से 1 1 कैंडीज कितने चिल्ड्रंस को दे सकते हो? ऑब्वियसली 4/1 नंबर ऑफ 4। 5/1 इस फाइल से 5। 7/1 इस फाइल से 7। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस जिन्हें तुम इन फाइल्स का यूज करके कैंडीज दे सकते हो 1 1, वो कितने हो जाएंगे? 5 4 9 7 5 4 9 7 16। टोटल नंबर ऑफ कैंडीज तुम 1 1 पाइल की 1 1 कैंडी की पाइल्स तुम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 16 को दे सकते हो, और तुम्हें देने कितने को है? रिक्वायरमेंट 4 की। तो ऑब्वियसली 1 इज अ पॉसिबल आंसर। नाउ यू विल चेक फॉर 2 फॉर 3 फॉर 4 ऑब्वियसली। ठीक है, यहाँ पे आके भी तुम्हारा जो आंसर है, सपोज 4 में आके तुम्हें इम्पॉसिबल बता दिया, ठीक है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो आंसर है वो 3 हो जाएगा, कि मैक्सिमम वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, बट ऑब्वियसली तुम ये वाली अप्रोच, ये जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं, और वो हो जाएगी तुम्हें एक पॉसिबिलिटी के लिए चेक करने में कितना चलना पड़ रहा है? O ऑफ n, और यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? O ऑफ इसकी सम। ठीक है, सपोज यहाँ पे k की वैल्यू 1 हो जाती, ठीक है, तो तुम ऑब्वियसली क्या कर सकते हो, जो भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, सपोज अब यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैंने दे दी 10⁻⁷। ठीक है, तो तुम्हें 0 से लेके 10⁻⁷ तक चेक करना पड़ता, तो तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाती है? n इंटू 10⁻⁷। ऑब्वियसली दैट्स वाई यू कैन नॉट यूज दिस अप्रोच। नाउ अब इस अप्रोच की जगह मैं कर क्या सकता हूँ, ये देखते हैं। तो मुझे एक पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए कितना चलना पड़ रहा है? 10⁻⁷, सॉरी O ऑफ n। ओके, तो मैं कर क्या सकता हूँ, मैं इस चीज़ में बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकता हूँ। हाउ? मुझे मिनिमम वैल्यू पॉसिबिलिटी की पता है, वो है 0, दैट कैन बी माई लेफ्ट बाउंड। मैक्सिमम वैल्यू मेरी पॉसिबिलिटी की क्या हो सकती है? मैंने ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, और तुम इसको k भी ले सकते हो, क्योंकि तुम ऑब्वियसली k से ज़्यादा कैंडीज किसी को नहीं दे रहे होगे। ठीक है, k नहीं, इस चीज़ का सम। ठीक है, टोटल एरे का सम। जैसे यहाँ पे टोटल एरे का सम कितना है? ये 9 था, सॉरी, तो फिर से थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये 9 था, 9 5 14, 5 9 5 4 9 और 9 18। ठीक है, तो तुम किसी भी चिल्ड्रन को 18 से ज़्यादा कैंडीज नहीं दे सकते, तो तुम अपर बाउंड जो है वो इसका क्या रख सकते हो? इस एरे का सम। ठीक है, अब तुम इसके बीच में बाइनरी सर्च लगाओ सिंपली, और तुम्हें पॉसिबिलिटी जो वेरिएबल है, ठीक है, उस चीज़ को मैक्सिमाइज करना है। तो इस चीज़ के लिए तुम हमेशा बाइनरी सर्च यूज़ करते हो। तुम क्या करोगे, सिंपली मिड की वैल्यू निकालोगे, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू L + R/2। नाउ यू विल चेक, तुम ये मिड की वैल्यू, इट मीन्स इतनी कैंडीज कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को दे सकते हो इस एरे का यूज़ करके। ठीक है, सपोज मेरे पास एक एरे है और मेरे पास मिड की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे आके चेक कर लूँगा कि
टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, सपोज यहाँ पे है 10, ये है 12, ये है 14, तो 10 बाई मिड, 12 बाई मिड, 14 बाई मिड, ये है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस जिनको मैं कितनी नंबर ऑफ कैंडीज दे सकता हूँ। अगर ये जो वैल्यू है ये के से ज़्यादा या इक्वल है, ठीक है, इट मीन्स कि मैं इस एरे का यूज़ करके मिड कैंडीज अपने के चिल्ड्रंस को तो दे ही सकता हूँ ऑब्वियसली। तो अगर ऐसा है तो मैं ऑब्वियसली आई विल गो फॉर सम आंसर ग्रेटर देन मिड। तो मैं जो अपना अब बाउंड था जिसमें मैं पहले सर्च कर रहा था, तो उससे राइट में चला जाऊँगा और यू कैन से मैं अब अपने एल को, लोअर बाउंड को क्या बना दूंगा, मिड प्लस 1, ओके। और अगर यहाँ पे के से कम है तो मैं क्या कर दूंगा, आर को अपने मिड माइनस 1 बता दूंगा, ठीक है, फाइन। तो इस तरह तुम अपना कुछ सॉल्यूशन बिल्ड कर सकते हो। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सम कैन बी 10⁻12, ठीक है। तो तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी सॉल्यूशन की, ओ ऑफ एन मल्टीप्लाई लॉग ऑफ, बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, लॉग ऑफ इतनी भी रेंज में तुम लगा रहे हो तो इतनी, ठीक है, एंड दिस कैन बी अ पॉसिबल कॉम्प्लेक्सिटी। तो कोड डिस्कस करते हैं, और तुम्हें अप्रोच पे कोई भी डाउट है यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। मैंने एक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने अपनी एरे पास की, कैंडीज की, वैल्यू ऑफ के पास की एंड पॉसिबिलिटी पास की। पॉसिबिलिटी इज वैल्यू ऑफ मिड, ठीक है, और एक्स बनाया। एक्स में अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस मैं जिसको इतनी कैंडीज दे सकता हूँ। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, एक्स प्लस आई बाई पॉसिबिलिटी, अ सिंगल पाइल दैट हैव आई कैंडीज, ठीक है। वो कितने बच्चों की पॉसिबिलिटी फुलफिल कर देगा, आई बाई पॉसिबिलिटी की, ठीक है। नाउ अब मैं सिंपली जाऊंगा, चेक करूंगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ से चेक से रिटर्न कर दूंगा ट्रू, कि ये पॉसिबिलिटी या फिर इतनी नंबर ऑफ कैंडीज सारे चिल्ड्रंस को देना इस एरे का यूज करके पॉसिबल है, अदरवाइज फॉल्स। एक एज केस है दैट इफ पॉसिबिलिटी इज इक्वल्स टू 0, ऑब्वियसली यहाँ पे जो तुम्हारा है ये तुम्हारा दे देगा क्या, तुम्हारा रन टाइम एरर, क्योंकि आई बाई 0 हो जाएगा। दैट्स वाई एक एज केस यहाँ पे डाल देना, इफ पॉसिबिलिटी इज इक्वल्स टू 0, तो 0 इज ऑलवेज अ पॉसिबल आंसर, दैट्स वाई ट्रू। अब यहाँ पे मैंने एल और आर की वैल्यू डिफाइन की फॉर बाइनरी सर्च, और मैंने आर की वैल्यू ली है मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ कैंडीज एरे, और एल की वैल्यू 0। सिंस इसको लॉन्ग ले रहा था मैं, क्योंकि जो मेरा के का वैल्यू है और पोजीशन की वैल्यू है लॉन्ग हो सकती है, तो मैंने लॉन्ग लिया है सब चीज़ें, ये चीज़ ध्यान देना। और एंड में लेकिन रिटर्न किया है एंड, ठीक है, क्योंकि मुझे जो फंक्शन मिला था उसमें एंड रिटर्न करना था। यहाँ पर मैंने अपनी नॉर्मल बाइनरी सर्च लगाई, मिड की वैल्यू निकाली, मैंने लगाया एल प्लस आर माइनस एल बाई 2। इफ चेक किया कि करंट जो मिड पॉसिबल है कि नहीं बनाना, अगर है तो आंसर को अपडेट कर दो और एल इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1 कर दो, अदरवाइज आर इज इक्वल्स टू मिड माइनस 1 कर दो, दैट इज राइट में चले जाओ या लेफ्ट में चले जाओ। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन अगेन, ठीक है। और अगर तुमने अभी तक न्यूटन स्कूल का पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम नहीं देखा तो जस्ट गो एंड चेक देयर पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम। एंड इन द एंड अगर तुमने अभी तक कोडिंग टॉकीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जस्ट गो एंड सब्सक्राइब दिस, like this video and share this video. Thank you guys for watching.